Chapter number 4, 4.2 Properties of Materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with piece of clothes? Recall our experiments with pieces of clothes in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of clothes like figure 4.2? What we need of for a tumbler is glass, plastics, metals or other such materials that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like a material for cooking vessels. क्या आपने ये जानने का प्रयास किया कि हम जो ग्लास यूज़ करते हैं वो कपड़े का क्यों बनाया नहीं जाता? तो हमें ये पता है कि जो हम ग्लास में कुछ ना कुछ लिक्विड रखते हैं तो उसे बनाने के लिए कई सारे चीज़ें हैं जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल। वो जो लिक्विड या वाटर को होल्ड कर सके ऐसी चीज़ों से हमें ग्लास बनाना चाहिए। सिमिलरली हम ये भी सोच सकते हैं कि हम जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए वो भी हम पेपर का नहीं बना सकते। ये बहुत ही फनी हो जाएगा जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। We see that. Then we choose the materials to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. अब हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो कौन से यूज़ में हम लेते हैं उस तरह से उसका मटेरियल भी लेना चाहिए। सो what are all the properties of materials that would be important for their uses? Some properties are discussed here. चलिए आइए हम ये सब इन डिटेल डिस्कस करते हैं। Appearance. Material usually look different from each other. Would look very different from iron. Iron appear different from copper or aluminium. At the same time, there are some similarities between iron, copper, aluminium that are not there in wood. कई सारे मटेरियल्स अलग अलग ही दिखते हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, जैसे कि सिमिलरिटीज़ है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कई सारे उनमें सिमिलरिटीज़ भी है पर वो लकड़ी से एकदम ही भिन्न है। एक्टिविटी नंबर 3, collect small pieces of different materials: paper, cardboard, wood, copper, wire, aluminum sheet, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny materials into a group. अलग अलग तरह के मटेरियल्स को चीज़ों को कलेक्ट कीजिए और उनमें से जो शाइनी मटेरियल्स है उनको एक अलग ग्रुप में बांटे। Now observe as the teacher cuts each materials into two pieces and look at the freshly cut surface like figure 4.3. What do you notice? Does the freshly cut surface of some these materials appear shiny? Include these objects also in the group of shiny materials. अब आप इन सब मटेरियल्स को कट कीजिए जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है उस टाइप से और आप देखिए कि क्या उनकी सरफेस मतलब कि शाइनी दिखाई देती है आपको। तो आप एक अलग उसका एक ग्रुप बनाइए शाइनी मटेरियल्स का। डू यू नोटिस सच अ साइन लस्टर in the other materials? Cut them anyway as you can. Repeat this in class with as many materials as possible and make a list those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has. अब कई सारे मटेरियल्स को आप इस तरह से काट कर देख सकते हैं जिसमें लस्टर है वो उसका एक आप अलग अलग आप ग्रुप बना दीजिए और एक लस्टर वाला ग्रुप और एक विदाउट लस्टर वाला ग्रुप और आप उन ग्रुप को अलग अलग बांट दीजिए। सभी मटेरियल्स को आप रब करके देखिए क्या वो उनकी सरफेस जो है वो कुछ लस्टर जैसा दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। Materials that have such luster are usually metals.
Iron, copper, aluminium, and gold are examples of metals. Some metals often lose their shine and appear dull because the action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. जिन मटेरियल में आपको लस्टर दिखाई देगा वो मेटल्स के बने होंगे, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड्स एक्सेट्रा एग्जाम्पल है मेटल्स के। कुछ धातुएं अपना जो चमक है वो खो देती है, ऐसा हवा और मॉइस्चर के कारण होता है। इसलिए हमें ताज़ा कटे हुए मटेरियल्स में ही हमको लस्टर दिखाई देता है। और आप वर्कशॉप या आयरन स्मिथ में जाके देख सकते हैं कि क्या आपको ये धातु और ये चमक ये कौन कौन से पदार्थों में मिलती है या नहीं मिलती है। हार्डनेस, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू compress while other can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it. The surface of piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other materials or objects. You can easily scratch some materials, while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are different compressed are called hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. आप कई सारे मटेरियल्स को आप हाथ पकड़ के देखिए और दबा के देखिए, क्या वो दब जाते हैं या कुछ ऐसे मटेरियल्स भी है जो आपके दबाने से नहीं दबते। और आप एक एल्यूमिनियम की की लीजिए और मेटल की और उससे कई सारी चीज़ें अलग अलग तरह की उन पे खरोच के देखिए, क्या कुछ चीज़ों पे वो खरोच आती है या कुछ चीज़ों पे खरोच नहीं आती। जो पदार्थ जो मटेरियल को हम इजीली दबा सकते हैं या खरोच सकते हैं वो हम उसको सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे, और जो मटेरियल है वो मतलब कि हम दबा नहीं सकते या खरोच नहीं सकते उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, हार्ड मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल दिए गए कॉटन और स्पॉन्ज है वो सॉफ्ट है और आयरन है वो हार्ड मटेरियल है। In appearance, material can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think other properties that describe the appearance of material? इस तरह कई सारे मटेरियल्स की अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हमने देखा लस्टर, हार्डनेस एंड रफ है या स्मूथ है, और आगे भी हम कई सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानने का ट्राई करेंगे। Soluble or insoluble. Activity number 4. Collect sample of some solid substance such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. Take 5 glasses or beakers. Fill each one of them about 2/3 with water. Add a small amount, spoonful or sugar to the first glass, salt to the second, and similarly add small amount of other substance into the other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happens to the substance added to water, like figure 4.4. Note your observation as shown in table 4.3. कुछ ऐसे पदार्थ जैसे कि चीनी, नमक, चॉक पाउडर एक्सेट्रा ऐसे आप इकट्ठा कीजिए। अब आप 5 ग्लास लीजिए और उनमें 2/3 पार्ट आप वाटर ऐड कीजिए। अब आप पहले ग्लास में 1 स्पून शक्कर डालिए, दूसरे ग्लास में 1 स्पून नमक डालिए, तीसरे में एक्सेट्रा कोई भी आपके पास जो मटेरियल है वो डालिए सब्सटेंस। अब उसको घोल लीजिए और उसमें आप थोड़े मिनट के लिए आप ज़रा सा थोड़ा टाइम प्रतीक्षा कीजिए। अब आप देखिए कि इन जो अपने वाटर में जो सब्सटेंस ऐड किया था, मिलाया था, उसमें क्या क्या कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको, वो आप नोटिस कीजिए। और आप ये 4.3 ये
जो कॉलम है, हमें जो टेबल दिया गया है वो आपको ऐड करना है, जैसे कि मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में आपको सब्सटेंस दिया गया हुआ है और दूसरे कॉलम में आपको डिसअपियरेंस इन वाटर डज नॉट डिसअपियर, मतलब कि आपको ये ढूंढना है कि क्या वो जो सब्सटेंस आपने मिलाया है पानी में वो मतलब कि उसमें डिसअपियर होता है या नहीं होता है। जैसे कि फर्स्ट हमने लिया था नमक, वो आपको पता है, तो आपको आप पानी में नमक डाल के थोड़े टाइम के लिए इंतज़ार करेंगे तो आपको वो जो सॉल्ट है वो डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर ऐसा दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब कि सिंपल सा वो पानी ही आपको लगेगा। देन शुगर, शुगर हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स सेम सिचुएशन, डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर। देन सैंड, सैंड हम लेंगे तो आपको पता है कि आप पानी में जो रेती होती है उसको आप मिलाएंगे तो आपको वो डज नॉट डिसअपियर। देन आप चॉक पाउडर लीजिए तो चॉक पाउडर भी डज नॉट डिसअपियर। देन सेव डस्ट डज नॉट डिसअपियरेंस। इजीली आप ये टेबल में आप खुद ट्राई करके बना सकते हैं। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. आपने देखा कि कई सारे ऐसे सब्सटेंस है वो पानी में पूरी तरह से सॉल्यूबल थे, इसीलिए हम वो मटेरियल्स को हम सॉल्यूबल मटेरियल्स बोलेंगे। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डोंट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस सब्सटेंस आर इनसॉल्यूबल। आप इजीली सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल का पता कर सकते हैं। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। डू लिक्विड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर? हम सब जानते हैं कि वाटर हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उनके कई सारे फंक्शन भी होते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि लिक्विड भी वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा? Activity number 5. Collect sample of vinegar, lemon juice, mustard oil, coconut oil, kerosene or any other liquid. Take a glass tumbler, fill it up to half with water. Add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mixed with water. Figure 4.5. Repeat the same with other liquids as many different liquids as are available to you. Write your observation. Table 4.4. अब आप इस एक्टिविटी में अलग अलग तरह के लिक्विड लेंगे, जैसे कि विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट, कैरोसिन, अदर लिक्विड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब क्या करिए, एक ग्लास में पानी लीजिए और फिर उसमें ये सब थोड़ा थोड़ा डालिए और आप देखिए कि क्या इसमें कुछ चेंजेस होता है या नहीं। और आप ये 4.4 जो टेबल दिया गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, वो आप फिल कीजिए। फर्स्ट कॉलम में हमें दिया गया है लिक्विड और सेकंड कॉलम में हमको मिक्स्ड वेयर डज नॉट मिक्स, ये लिखना है कि क्या वो जो लिक्विड है वो वाटर में मिक्स होता है या नहीं होता। फर्स्ट है विनेगर, ऑफ कोर्स मिक्स इट वेल। देन हमको लेमन जूस दिया गया हुआ है, वो भी मिक्स हो जाएगा। देन मस्टर्ड ऑयल, क्या मस्टर्ड ऑयल मिक्स होगा? आप खुद ट्राई करके देखिए, डज नॉट मिक्स, वो मिक्स नहीं होगा। कोकोनट ऑयल सेम सिचुएशन, डज नॉट मिक्स। कैरोसिन भी मिक्स नहीं होगा। हम इजीली इसका पता कर सकते हैं, आप फिगर में भी देख सकते हैं 4.5 में। सम लिक्विड्स आर मिक्स वेल विथ वाटर वाइल एंड सम अदर डू नॉट। We notice that some liquids get completely mixed with water. Some other do not mix with water from separate layer when kept aside for some time. हमने easily ये देखा। Buzo suggests that we also check if liquids that we used in activity 5 mix well with some liquids other than water. Pahali is curious to know whether glass also dissolve in water. बुजो जानना चाहता है कि क्या हमने जो एक्टिविटी 5 में जो अलग अलग तरह के लिक्विड लिए थे वो एक दूसरे में इजीली मिक्स हो जाते हैं वाटर के अलावा दूसरे कोई लिक्विड में भी। और पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैस भी पानी में डिसॉल्व होती है। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर
whereas other are not. Water usually has small quantity of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. कुछ तरह के जो गैसेस है वो पानी में सॉल्यूबल है और कुछ नहीं है, तो हम ये पता कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है वो तो कितना ज़रूरी है जो पानी में रहते हैं उन एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, तो ऑक्सीजन गैस है वो पानी में ऑफ कोर्स डिजोल्व है। देन ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और sink in water. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink, like figure 4.6. Dried leaves fallen on the surface of pond, a stone that you threw into this pond, drops of honey that let fall into a glass of water. What happens to all of these? ऐसे कई सारे पदार्थ होते हैं जो हम पानी में डालते हैं तो सरफेस पे तैरते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो नीचे जाके बैठ जाते हैं। इस तरह से हम इजीली पता कर सकते हैं कि कुछ जो पदार्थ है वो तैरते हैं और कुछ है वो डूब जाते हैं। आप इस तरह से कई सारे पदार्थ के बारे में जानेंगे तो आपको ऑफ कोर्स कि वो बहुत सारी जानकारी देगा कि कौन से पदार्थ है वो ऊपर तैरते हैं, कौन से है वो डूब जाते हैं। बुजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing the same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? अब बुजो जानना चाहता है आपके पास कि क्या कौन से वो 5 पदार्थ है वो ऊपर तैरते हैं और कौन से पदार्थ 5 है वो डूब जाते हैं, और ये भी जानना चाहता है कि ऑयल को जो हम पानी में डालते हैं तो उसका क्या होता है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ऑयल की ड्रॉप जैसे ही पानी पे गिरेगी वो तैरने लगेगी। देन ट्रांसपेरेंसी, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? Obviously not, as your friends can see through that and spot you. Can you see through all the materials? Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. Figure 4.7 हमने देखी। Glass, water, air, some plastic are examples of transparent materials. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent containers of glass or plastic so that you buyers can easily see these items. आपने अपने फ्रेंड के साथ हाइड एंड सीक खेला होगा, तो आप कौन सी ऐसी प्लेस चूज़ करते हो जहाँ पे आप छुप सके। ऑफ कोर्स आप ऐसी प्लेस चूज़ करेंगे कि जहाँ से आप नहीं दिखे, जैसे कि आप खिड़की के पास तो नहीं छुपेंगे, क्यों? क्योंकि वो शीशे में आप इजीली देख जाएंगे। ओके, तो वो पदार्थ की जो जिनसे होकर दूसरी वस्तुओं को हम देख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स आपको पता है, उसे हम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, लुकिंग थ्रू ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूकेंट मटेरियल्स। कांच, पानी और प्लास्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कई सारे मटेरियल्स है जो कैसे है? ट्रांसपेरेंट है। आपने शॉपकीपर के वहाँ भी देखा होगा कि वो कांच की बरनी में सब एक बिस्किट, चॉकलेट्स या स्वीट्स ऐसे सब रखते हैं। क्यों? क्योंकि खरीदार इजीली उसे देख सके और इजीली वो खरीद सके। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. दूसरी तरह आप जो चीज़ या पदार्थ से होकर आप दूसरी वस्तुएं नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं?
Opaque means apardarshi. You cannot tell what is kept in closed wooden box, a cardboard, carton or metal container. Wood, cardboard and metals are example of opaque materials. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? आप यहाँ पे देख, जैसे कि आप वुडन बॉक्स है, कार्डबोर्ड, कार्टन, मेटल्स, कंटेनर, उसमें से आप दूसरी चीज़ें नहीं देख सकते, तो ऑफकोर्स उसे हम क्या बोलेंगे, ऑपेक. अब आपको क्या करना है, अब हम ऑपेक और ट्रांसपेरेंट कौन कौन सी चीज़ है वो हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे. एक्टिविटी 6. टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड lighted bulb. Make a note of your observation. Now put 2-3 drops some oil and spread it on the sheet of paper. Look again toward the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find that bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oil paper? Is everything on other side of it visible? Perhaps not. The materials through which objects can be seen, but not clearly, are known as translucent. Remember the oily patches on paper when we tested food items of presence of fats. That was translucent too. Can you think of some more example of translucent materials? अब आप पेपर लीजिए और एक बल्ब को आप उसके आर पार देखिए, और बाद में आप क्या करेंगे, उस पेपर पे आप जो कुछ भी जो फैटी हो, ऑयली हो, ऐसे कुछ चीज़ लगाइए और आप फिर से आप देखिए तो क्या दिखता है आपको, लाइट जो बल्ब हुआ वो पोर्शन कैसा दिखता है. आपने नोटिस किया कि जो बल्ब आप पहले देख रहे थे जो पेपर पे, वो थोड़ा उससे बेटर आपको सेकंड जो आपने कुछ ऑयली चीज़ लगा के देखा, उसमें आपको जो बल्ब है, जो लाइट है, वो इजीली दिखाई देगी. पर आप जानने की ट्राई कीजिए कि आप दूसरी ओर जो चीज़ देख रहे हो वो एकदम क्लियर है या कुछ धुंधली सी है. तो देखिए कि आप जो देख रहे हैं वो एकदम क्लियरली वस्तुएं नहीं देख रहे, तो अब ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे कि हम दूसरी और वस्तुओं को देख सकते हैं पर एकदम क्लियरली नहीं, सिर्फ धुंधली धुंधली, तो हम उसे ट्रांसलूकेंट बोलेंगे, जैसे कि पारभासी. We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. हम पदार्थों को इजीली इन 3 ग्रुप में बांट सकते हैं, जैसे कि opaque, transparent and translucent. पहली सजेस्ट covering the glass of torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. See, wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. पहले इस फिगर में दिखाया गया है उस तरह से एक अंधेरी जगह में टॉर्च को अपनी हथेली से बंद करके देखना चाहते हैं कि वो उसे क्या दिखाई देगा. अब आपको ढूंढना है कि जो आपकी हथेली है और टॉर्च आप ये इस तरह से करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, opaque, transparent या translucent. We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Material can be grouped on the basis of similarities or difference in their properties. हमने देखा कि अलग अलग तरह के पदार्थों की अलग अलग तरह की दिखावट होती है, जैसे कि कई पदार्थ है जो लिक्विड और वाटर में अलग अलग तरह से वो मिक्स होते हैं. कुछ पदार्थ है वो ट्रांसपेरेंट है, ऑपेक है, और कुछ है ट्रांसलूसेंट. ऐसे अलग अलग ग्रुप में हमने सिमिलरिटीज़ देखी, कई तरह से डिफरेंस है प्रॉपर्टीज़ में उनके, वो भी देखा. ओके, व्हाई डू वी नीड ग्रुप मटेरियल्स? इन एवरीडे लाइफ we often group materials for our convenience. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all type biscuit at
one corner of his shop, all shops at another, while grains and pulses are stored at some other place. हमें सभी मटेरियल्स को, पदार्थ को अलग अलग तरह से रखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हम इजीली उससे हम सुविधा ले सके। जैसे कि हम बिस्किट लेने गए तो एक ही साइड पे बिस्किट होंगे तो इजीली हम देख सकेंगे। जैसे कि जो शॉपकीपर है वो भी करते हैं, जैसे कि साबुन को अलग रखो, पल्सेस को अलग रखो, दाल को अलग रखो, चॉकलेट्स को अलग, ऐसे ऐसे इस तरह से हमें इजीली वो सुविधा मिल सके। इसीलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, इसीलिए हम ये सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups make it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties. We will study more about this in higher classes. इस प्रकार हम ये सब ग्रुप में बांटने का हमको लाभ भी मिलता है और कई सारी उनकी जो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में भी हम इजीली जान सकते हैं। ये हम आगे क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।